Are you thinking of going for a PhD? Or are you in a PhD program already? आपके पास ऐसे क्या ऑप्शंस हैं? PhD के बाद क्या होता है? अभी हम देखेंगे PhD के बाद की कौन सी 10 पॉसिबिलिटीज हैं आपके लिए. This is Chaitanya Sambhara, Assistant Professor, Faculty at the College of Business, University of Texas Arlington. मैंने खुद PhD की थी between 2009 and 2015. Since 2015, I have been working as a professor in a university setting. अब डिस्कस करेंगे PhD के बाद की सबसे पहली पॉसिबिलिटी. पहली पॉसिबिलिटी है कि PhD करने के बाद आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले ही ना, लेकिन ऐसा कम ही होता है. लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि ऐसा होता ही नहीं है, फिर भी कम होता है. The second possibility is definitely better than the first possibility. Second possibility में आपको कुछ अपॉर्चुनिटी तो मिलती है, लेकिन वो आपके फील्ड से सिमिलर नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने PhD की है केमिस्ट्री में और आप IT में टेस्टिंग कर रहे हैं, then your work and your training do not correspond. Possibility number 3. Job opportunity in a non-academic research setting but in an unrelated field. इसका क्या मतलब है? एक एग्जाम्पल देखते हैं. अगर किसी ने PhD की है मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में या फिजिक्स में, और अगर वो जॉब करते हैं Amazon या Netflix में एज अ डेटा साइंटिस्ट, then you are using some of your skills that you learned in the PhD program but only in a limited manner. Possibility number 4 is a job opportunity in a related industry. For example, if you have a PhD in electrical engineering or electronics engineering or VLSI design and you go and work for Intel, तब भी कहा जा सकता है कि आप उसी फील्ड में हैं जिस फील्ड में आपने PhD की है. This is the case where your training in the PhD program and your work are better aligned. Possibility number 5 is a research-oriented job in the industry in the same field. For example, अगर आपने PhD की है in pharmaceutical sciences और आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक रिसर्च साइंटिस्ट का जॉब करते हैं, तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप पैटेंट्स फाइल करें, पेपर्स पब्लिश करें और इनोवेशंस करें उसी फील्ड में जिसमें आपकी ट्रेनिंग है. पॉसिबिलिटी नंबर 6 इज अ पोस्टडॉक इन अ यूनिवर्सिटी और अ रिसर्च सेटिंग. पोस्टडॉक का क्या मतलब है? PhD stands for Doctor of Philosophy and the degree is also called a doctorate degree. पोस्टडॉक का मतलब ये है कि डॉक्टरेट करने के बाद पोस्ट दैट डॉक्टरेट डिग्री यू कंटिन्यू डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग एज अ रिसर्चर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप PhD कर रहे हैं, यू आर अ PhD स्टूडेंट बट यू आर नो लॉन्गर considered a PhD student but a PhD graduate with a continuing agenda in the same field. Postdoc is very common in sciences. For example, if you have a PhD in biology, इट इज़ वेरी लाइकली कि आप किसी यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक पोजिशन ले लें या फिर किसी लैब में पोस्ट डॉक पोजिशन ले लें. सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल इन अटलांटा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ आर एग्जाम्पल्स दैट आर नॉट यूनिवर्सिटीज बट provide a strong research environment. In these postdoc positions, you work under direct supervision of a principal investigator and you are considered as a co-investigator. लेकिन ज़्यादातर postdocs आपको यूनिवर्सिटी सेटिंग्स में ही मिलेंगे, जहां पर रिसर्च लैब में 3 तरह के लोग होते हैं. नंबर 1 आर द प्रोफेसर्स who are already established there and who are leading a particular lab. Second are the PhD students who are getting their PhD under the guidance of that professor. And the third category are the postdocs that who got their PhD usually in some other university और कभी कभार उसी यूनिवर्सिटी से ही PhD करके कुछ लोग postdoc कंटिन्यू करते हैं. इन postdoc पोजीशंस में आप प्रोफेसर नहीं होते हैं, आपको टीचिंग रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं and you're expected to work on your research at all times. Possibility number 7 is a contract-based teaching position in a university setting. You're called a visiting assistant professor or an adjunct faculty. These are primarily teaching jobs and there are no expectations on your research productivity. You are hired on a contract basis and your contract needs to be renewed every 1, 2, 3 years, whatever the length of your contract is. Professors' jobs can be harder to get, so a lot of times people join a university setting who love teaching take these kind of positions. अगर आपको टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, अगर आपका पैशन है टीचिंग करना, तो आप लेक्चरर या एडजंक्ट फैकल्टी या क्लिनिकल फैकल्टी, ये अलग अलग टाइटल्स हैं,
जो कि आप ले सकते हैं एट अ यूनिवर्सिटी सेटिंग। इन टाइटल्स में क्या फर्क होता है मैं किसी और वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। The eighth possibility is where you become an assistant professor in a university setting. However, your university is more teaching oriented. ऐसे कई यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनका फोकस रिसर्च पर कम और टीचिंग पर ज्यादा होता है। कम्युनिटी कॉलेजेस फॉर एग्जांपल, उनका पूरा फोकस टीचिंग पर ही होता है। यूएस में कम्युनिटी कॉलेजेस होती हैं और छोटी यूनिवर्सिटीज होती हैं जहां पर आपसे एक्सपेक्टेशन ये किया जाता है कि आप अपना पूरा फोकस अच्छी टीचिंग पर करें। रिसर्च एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, या होती भी हैं तो बहुत ही कम होती हैं। द नाइन्थ पॉसिबिलिटी इज अ रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी वेयर यू कैन बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर ईदर इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ योर पीएचडी और सम टाइम आफ्टर दैट। करीब 5% लोग ही पीएचडी के बाद तुरंत असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज में। तो मैं बहुत लकी था कि मुझे एक ऐसा पोजीशन तुरंत ही मिल गया। इनफैक्ट पीएचडी से ग्रेजुएशन करने के शायद 8-9 महीने पहले ही मेरे हाथ में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का जॉब था। The research expectations in these jobs are much higher than community colleges or some other teaching oriented universities. Although you have to teach in these universities, but the number of classes that you are expected to teach is lower. लेकिन एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप रिसर्च पर अच्छा परफॉर्मेंस दें, और रिसर्च प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय योर scientific publications in scientific academic journals. This is often considered to be the best possibility of all. And the 10th and the final possibility is that you do not take any job or a position in a university or a research lab or a company. Instead, you make your own company. That is, you become an entrepreneur. And there can be two different types of entrepreneurs. One is an entrepreneur who establishes a company based on his own research. PhD में जो भी रिसर्च किया था या जो भी इंटरेस्ट डेवलप किए थे उसी के ऊपर आप कोई कंपनी एस्टैब्लिश कर दें। फॉर एग्जाम्पल, लैरी पेज एंड सर्गे बिन वर डॉक्टरल स्टूडेंट्स एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। उन्होंने अपनी पीएचडी शायद कंप्लीट तो नहीं की थी, लेकिन पीएचडी के दौरान उन्होंने जो भी काम किया था उसी के बेसिस पर गूगल कंपनी बनाई थी। और ऐसे भी थोड़े एग्जाम्पल्स हैं जहां पर लोगों ने अपनी खुद की कंपनी बनाई बेस्ड ऑन वट एवर दे लर्न ड्यूरिंग द पीएचडी प्रोग्राम। लेकिन अलग पॉसिबिलिटी भी हो सकती है जहां पर आप अपनी खुद की कंपनी बनाए, लेकिन आपकी कंपनी में जो भी काम आप करते हैं, जो कि खुद की कंपनी है आपकी, उसका आपकी पीएचडी से कोई लेना देना हो ही ना। अगर आपको यही करना था तो आपने पीएचडी में इतने साल क्यों गवाए वो मुझे नहीं पता। चलिए दोस्तों, दीज वर द 10 पॉसिबिलिटीज जो मैंने आपके साथ आज डिस्कस की। अगर कोई पॉसिबिलिटी मुझसे छूट गई हो तो आप नीचे कमेंट्स पे लिखें और मैं उसको भी इंक्लूड कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको नई जानकारी मिली होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट लिखकर। मैं या तो नया वीडियो बनाऊंगा उन सवालों का जवाब देने के लिए, या आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। जय हिंद, गॉड ब्लेस अमेरिका।